अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी। अच्छा। तो लाइक आई थिंक Akshay has got some connectivity issue, तो हो सकता है वो Yes, ज्वाइन कर I think मैसेज था। अभी ऑनलाइन तो थी, उन्होंने she has sent me this assignment thing but I don't see her online right now. But anyways, I'm recording the session, so if she cannot join us, she'll be able to see the recording. Okay? So I'll send her the because we have to continue. We can't just skip. During the day फिर मुझे कोई issue हो जाता है या कोई problem होती है तो फिर मसला हो जाता है. अच्छा, I've seen. I have not been through your these letters. ठीक है, ये जो essays थे उस पे अभी I have to go through them. So after I've been through them, then I'll give you the comments on WhatsApp only. WhatsApp के ऊपर ही मैं. Okay, regarding that speaking session, like today we are supposed to start with the speaking thing. आपने speaking classes attend करे? आपको कुछ idea? Give me some example. Miss Mavish, one class. I have one class, Miss Mavish speaking class. Okay. I attended. Okay. So what do you remember? And three session. I think speaking part is the three session. Okay. One is questions of your information about your life and your knowledge, and second is we get a one और कोई भी यानी कि वन वो दे देते हैं आपको, कोई क्यों दे देते? आपको कुछ तीन, हाँ कोई क्यों दे देते हैं कि जिसपे 3 minutes you speak continuously. Okay. So what about the first part which you have to tell about yourself? Yes. And the first part about defining or telling about yourself, can you do that today with me? If I ask you a few questions. Acha, here's the question that was Nadia. Nadia is another student. She has already taken her IELTS and she is going to appear for a job interview. So that's why she is having an interview mock session with me. Like she's having a rehearsal for the interview. So that's what we were doing. Now what we'll do is I'll quickly share the screen with you in a while, and we'll elaborate this. Let me. Okay, so I'll share the screen with you. This is the same, I think so, similar sort of a presentation which you've already been through, but I'm just repeating that just to give you an idea. I will do the slideshow. Okay, I'll minimize the screen. I think so the whole screen is not coming, right? Not coming, yes. Okay, we'll go back. I'll end the show without screen show. I think so without that you can see the screen, right? Okay. You can read the slide, right? Yes, I see. Right? All right, the first one, like the thing is just talking. I'm quickly going through the slides so that I'm just going to review whatever you have already been told. Okay, so it's one-on-one interaction that you and the examiner are going to have a session with one another. It's going to be divided into 3 parts, and your speaking session is going to be recorded. Like we are recording our conversation right now, so likewise that session is going to be recorded. So overall time is going to be 11 to 14 minutes, and the marks are assessed according to your performance. Like throughout the test, how do you perform? That means you have to be confident also. You have to have correct English. Speaking is divided into 3 parts, like you've already told. The first one is 4 to 5 minutes session in which you are going to have an introduction and an interview, and after the introduction, like you have to tell your identity to the examiner.
He can ask you any familiar topics. Okay, and the long term is that you'll receive a task, like you'll be given a card on which a topic would be given, and you have to prepare that cue cards, task, whatever is given to you then and there. You just have to take down the notes for 1 or 2 minutes, and then you have to speak about it. The total time taken would be 3 to 4 minutes. Okay, so first you take the card, read the question, you'll be given a minute or two. You prepare yourself and extempore you speak. Like, you are not going to carry a paper and a pencil or write down and then read from it. Just have to, you can take down some notes, but you are going to speak orally on it. Okay. देन इज लाइक आपने ना जबानी बोलना है. आपको जो टास्क कार्ड दिया जाएगा, जिस एक क्यू कार्ड होगा जिसके बाद कुछ सवालात होंगे, तो आपने उन सवाल को पढ़ के जवाब देना है. ठीक है. उसके बाद जो है वो आपके पास है 4 to 5 मिनट्स का डिस्कशन. ठीक है. एग्जामिनर जो है आपसे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी पार्ट 2 के टॉपिक्स के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपसे एलैबोरेटेड कॉन्वर्सेशन करेगा. आपके पास आपकी जो स्टूडेंट्स बुक है उसमें डिफरेंट टेस्ट दिए हुए हैं. ठीक है. आपने देखे हैं वो टेस्ट, स्पीकिंग सेक्शन वाले? तो हम लोग उनको गो थ्रू कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको आइडिया हो जाए. अब पार्ट 1 में क्या होता है, एग्जामिनर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है. लाइक इफ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू दैट आई एम हुमायूं एहतेशाम सैयद एंड आई एम हियर इन यूएई एंड आई एम एन IELTS instructor, like, or an ESL instructor, that means an English as a second language instructor. And then she asks the candidate about familiar topics, like, I can talk to you about how many friends do you have any best friend, what are your hobbies, what kind of food do you like. ठीक है. इस तरह के डिफरेंट सवाल मैं आपसे पूछ सकते हैं. To ensure consistency, questions are taken from scripted examiner frame. यानी कि वही जो एग्जामिनर ने जिस तरीके से आपको सवाल किया, अपने बारे में बताया हो या पूछा, आपने बस उसी के जवाब देने. Like for example, I ask you, like, Bushra, can you tell me about yourself? तब क्या बोलेंगी? My name is Bushra Yawar and my education is BCom. Instead of saying my education is BCom, you can say I'm a graduate in commerce. Okay, I'm a graduate in commerce, and then you can say that I'm from Karachi, which is in Pakistan, and I'm married, and I have like 4 children. You have 4 children, or how many? Like 2 daughters. Two children. I have 2 children, 2 daughters, or a daughter and a son. Yes, daughter. 2 daughters. I have 2 daughters. Okay. Likewise, and what your husband does, even you can tell. Achha, what are your hobbies, Bushra? What do you do when you're free? What do you do in your leisure time? Making delicious food and try new recipes. Okay, very good. So that means you're a good cook. Cooking. Okay, so you enjoy doing cooking. Okay, I also enjoy doing cooking. Okay, then do you like going out? Do you go for outing with your family? Yes, I like it. It's an enjoyment time for the going outside with my family, my daughters, my husband. Okay, so where do you usually go on weekends, like on Sundays and all? Where do you people go? Do you go to any parks? Do you go to any malls? Do you go to your relatives? Mostly I will go to the restaurants. Okay, like I will go to a friend. Bushra, mostly I will go to नहीं, mostly we go to, क्योंकि आप क्या बता रही हो present indefinite में, कि हमेशा हम लोग अक्सर ये करते हैं. I will go to means कि आप बता रहे हो आप future tense में जाओगे, तो आपने उसको ये तो नहीं बताना ना, आपने बताना आप क्या करते हो. तो आप क्या बोलोगे? I usually or we usually go out to eat. We like exploring different restaurants, because we are very fond of food, so we go and try out if there is a new restaurant, so we try out the food over there. ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो. ठीक है. Okay, then about your friends. Okay, I'm just giving you the example from the slide. Sample part 1 is, let's move on and talk about environment. Okay, what kind of threats are there in the environment in your country? तो किस तरह के threats हैं, किस तरह की खतरात हैं लाहक आपकी माहौल को या country की environment को? क्या बोलेंगे बुशरा इसमें? I think the major point is the industry. It's working and too much pollution.
in the environment. Okay. And traffic, bigger problem is traffic. Lots of traffic in the roads. Okay, so that also comes in terms of pollution. There's noise pollution, there is air pollution. Yes, Okay, so air pollution is one pollution, of the noise pollution. dangers to the country. Okay, do you think your country is protecting the environment enough? So you can say different measures are being taken, but we need to work harder on this aspect of Yes. having good hygienic conditions. And Good now hygienic and अभी के बारे में आप लोग ना ज्यादा बात कर सकते हो because अभी का आपको पता है कि अभी कोविड का एरा COVID. 2019 से स्टार्ट हुआ है. So therefore, a lot of sanitization is going on. People take a lot of care in our country, are trying to get rid Yes, are of getting this cold. pandemic. Yes, so different precautions are being taken. Is the environment very important to you? Why or why not? So what do you think, Bushra? Is the environment important to you, or you think it's okay? Yes, of course, is the main point of healthy life. Because you care for your own lifestyle, so therefore you are very much, you need to be very careful about your environment. Okay, then the next one is, let's move on and talk about the sea. Have you ever made a journey by boat? What about you, Bushra? Have you ever made a journey by boat? No, I think it's not experience. No, not even on Kimani. You didn't go to Not Kimani. experience. You should go with your family on boating. Okay, and catch crabs and all. Tell your husband to take you there. Okay, is the seaside popular destination for people in your country? I think it's Kimadi. No. Is the seaside, सवाल समझिए. Is the seaside a popular destination for people in your country? आपके मुल्क के अंदर समंदर जो है ये एक अच्छी मतलब तफरी गाह है, like लोग जाते हैं, तो आप बोलेंगे yes, because yes, your not only in your country, your city is popular because of the sea, the seaside there. So people enjoy going there, and it's one of the favorite picnic spots of people. So whenever everyone feels like changing their mood or going out, they go to seaside, they enjoy there, they sit, they go with their family, there are different restaurants over there. तो आप इस तरह ना different चीजें बता सकते हो उनको ना, उसी में आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लो. Famous picnic of Karachi city. Famous picnic spot. Okay, what do you think should be done to prevent pollution of the oceans? अब oceans के लिए pollution को prevent करने के लिए, like there's a lot of beach cleaning being done in your country. Yes. Beach cleaning होती है, people go there, even school children go there and they collect all the garbage and put it in bags and then throw it in the bins. So you can talk about that. ठीक है. फिर next ये है कि let's move on to what do you do in your spare time, like hobbies and interests. तो आपने बताया like do cooking. Usually all the housewives we have to do cooking, so it's one of our hard and fast custom. Interest हो ना हो, but it is one of our interests. Okay. इसके अलावा क्या interest है? Do you do any knitting or anything, Bushra? कुछ करते हो? Reading books, reading. Oh, wonderful. So that's very rare in our country right now because बहुत लोग कम books पढ़ते हैं. So what kind of books interest you? It's a religion book. Okay, religious books. So what sort of books do you read? Ahadith? What do you read? Yes, ahadith, tafsir of Quran. Okay. Okay. So when and how did you become interested? How do you when did you started getting this interest of going through all the tafasirs and all, like all the translations and all? Like Yes. Was it in an early age, or you started reading right now, or what? I think it's my belief that whole religion you understand what is my religion, what is Islam, what is the Quran. Okay, very nice. But when did you start developing this interest? अब सवाल मेरा समझे. मैंने आपसे पूछा कि कब आपको ये इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, लाइक किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में होता है ना, बचपन से या लाइक शादी के बाद या अभी कुछ अरसा पहले. So when? So it's I think before 5 to 4 years. Okay, So before I 4 or 5 realized years ago
you started having your interest developed in knowing about about the religion more. Okay. So is there any place you would like to visit? Yes, I visit to I would like inshallah. to visit. I would like to visit. I would like to visit inshallah Khane Kaaba and Okay. Karbala also. Okay, and Karbala. So you would like to visit Iran and you would like to visit Saudi Arabia to perform the pilgrimage. Yes. Okay. So you want to see the you want to go there and see Khana Kaaba. Okay. Why? Because it Yes. holds a lot of religious value. Yes. Okay. Very. So let's see. I think options message. Let me check. Okay. बुशरा अगर कुछ नहीं समझ आ रहा हो या अगर मैं कोई पास जा रही हूँ तो आप मुझे बताना, ठीक है? समझ आ रही है? समझने में तो बहुत इजी हो जाता है लेकिन बोलने में जो है ना वो वर्ड्स कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है. वेरी गुड. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जो आप मुझे जवाब दे रही है ना, मैं तो उर्दू आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, आपने इंग्लिश ही यूज करनी है, ठीक है? यू हैव टू यूज इंग्लिश ओनली. ओके. So you try giving me the same answer in English because this is one platform through which you can practice your English. Okay. Practice. So like the more you practice, the better you are going to get, because you know IELTS का जो टेस्ट होता है ये बेसिकली आपको टिप्स देते हैं कि किस तरीके से क्लियर करना है. सही होनी चाहिए because it's not an English learning program, but we do try our utmost कि हम आपको हेल्प करें, फैसिलिटेट करें, आपकी लैंग्वेज चेक करें ताकि आप बेहतर तरीके से टेस्ट में स्कोर कर सकें. वरना फिर अगर आपकी खुद की ग्रामर अच्छी नहीं होगी, आपको वोकैबुलरी नहीं आती होगी, तो आपको पता हो कि पेपर में कितने कितने मार्क्स का क्या क्या सेक्शन है ये तो पता चल गया, लेकिन उसमें करना क्या है, अब अगर आप वो परफॉर्म ना कर पाए तो दैट बिकम जीरो, राइट? सो दैट्स व्हाई द मोर लाइक, इसीलिए मैं सिर्फ इसमें से रीड करके नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ साथ साथ, सो दैट यू आंसर. ओके. सो व्हेन यू आंसर यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ स्पीकिंग पार्ट ऑन योर ओन, राइट? वरना ये होता है यूजुअली अगर आप ऑन योर ओन बोल रहे होते हैं, या अगर मैं आपको अभी एक टॉपिक दे दूं कि आई वांट बुशरा यू टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट इनटू मूड टू कम अप विद द आंसर्स. तो इसीलिए जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या इंटरव्यू होता है तो इट बिकम्स मच इजियर, बिकॉज यू नो आपको पता होता है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने इसका ही जवाब देना है, तो उसके लिए भी आपको मेंटली अलर्ट होना पड़ता है, और प्लस आपको ये देखना होता है कि आपको वो चीज समझ आ रही है, ठीक है? अच्छा, then the sample part 1 is, let's move on and talk about your free time. ठीक है? I'm going to ask you these questions. I will give you sample answers also, like of my own, but you also have to give me an answer. Okay? So what do you people do in your country most enjoy doing in their leisure time? Like what do the people usually like doing in their free time? So I will first tell about here. Okay? Like I'm going to tell about UAE. So in UAE, usually people enjoy, you know, going to the malls, or they go to the water parks, or they go to like, you know, they go out for eating, or they go to deserts, or they go on they go to for the cruises. Okay, so for boating and all, so they go for cruise. So usually people here in my country, their leisure time is mostly spending time in either malls or for at entertainment places. Before pandemic, one of the famous or the most popular pastimes was cinemas. But right now, because of this pandemic, although the cinemas are open, but it's very rare that people go there. Okay. So now you tell me, what do people do in your country? What do they enjoy most doing in your in their free time? Talking to about Karachi peoples is mostly going to the outside in free time, and they go to the restaurants and parks, picnics, and that's this time is pandemic, so that's why it's lockdown in Karachi, and after lockdown and before lockdown, inshallah, corona is finished for the country, and after dear, if corona will never end up from our lives, we'll have to get used to of it. ये नहीं खत्म होना. We have to get ourselves equipped to live with it. ठीक है ना? तो COVID is something which is not going to spare us. So it's like flu, normal flu, pneumonia,
temperature, likewise, COVID is going to remain with us, but we have to learn to live with it. Okay, or although we are all getting vaccinated. So did you get vaccination done? Yes, I did. Okay, perfect. So which vaccine did you get vaccinated with? Sinovac. Sinovac. Okay, so it's more common in, I think so in Karachi, mostly people are getting Sinovac. In Pakistan, most probably Sinopharm and Sinovac Yes. most common one. Okay, we got it. AstraZeneca and Yeah. Sinovac, Sinopharm. So AstraZeneca is form of Pfizer, I think, because I got Pfizer done. Pfizer is a terrible one. Its side effects are too bad, very bad. So when we had COVID, like, you know, in our family, when we had COVID, it was the worst time ever because we had it in when it started, you know, we had it in 2020. So last year we all had COVID. Yes, and my mother-in-law passed away because of COVID. So it was a very tough time, yes. And you know the fourth wave that they're talking about right now, जिसमें बोलते हैं Yes. हो जाते हैं, मेरे first time में थे. So like बहुत tough था. It was very tough. Even my son had it. है. Let's come to the part 2 of speaking. ठीक है, part 1 में इसी तरह के questions हैं. आपको ये पूछना है अपने बारे में बताने, अपने friends के, अपनी hobbies के, अपनी country के, अपने leisure time के, अपनी environment के. ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? ठीक है. अब speaking part 2 is what happens is this is a long term section. Okay, the examiner gives the candidate a task card and a pencil and some paper to make notes. Like you'll be given a question on a card, you'll go through it, but you will have a paper and a pencil to make your points, like whatever comes into your mind, like an essay, you make main points. So the task card gives the topic some points to include in the long term, and a final prompt asking the candidate to explain one aspect of the topic. Using the prompts, like whatever the points are given on the task card, it will help the candidate to think of what is the appropriate way, how to organize, and you have to keep on talking for 2 minutes on that particular topic. Okay, तो अब इसके examples देख लेंगे हम फिर. Making notes during the preparation time also helps the candidate structure the long term. Like, you know, अगर आप points बना लेते हैं तो उससे आपको ये फायदा होता है कि आप जब उसको elaborate करना है तो आपको पता है कि actually मुझे बोलना क्या है. ठीक है. The candidate has a minute to prepare. 1 मिनट होगा आपके पास तैयारी करने के लिए. After which the examiner will ask you to speak in the topic for 1 or 2 minutes. ठीक है. अगर आपने 1 मिनट की preparation कर ली तो उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट तक उस topic के ऊपर बोलना है. फिर examiner जो है आपको stop करेगा after 2 minutes और वो आपको 1 या 2 questions पूछेगा for the long term, यानी कि उसके elaboration के. आपके बीच में बोल लेने के बाद examiner ने भी आपको बोलना है. For example, describe a book that influenced you. कोई ऐसी किताब के बारे में आपने बताना है जिसका असर आपका पड़ा. ठीक है. You should say what was it about. अब आपने ये point आपने खुद तैयार किया. What was it about? किस बारे में थी वो किताब, कब लिखी गई थी, क्यों आपने डिसाइड किया उसके बारे में पढ़ने के, और किस वजह से उसका एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आप पर हुआ. ठीक है. तो जिस तरह मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि यू टेल मी अबाउट व्हेन डिड यू स्टार्टेड रीडिंग रिलीजियस बुक्स. ठीक है ना. तो यू टोल्ड मी दैट इट स्टार्टेड 4 years ago. ठीक है. तो 4 to 5 years ago you thought. तो आप ये बोल सकते हैं कि the book that influenced me a lot was the religious book, because I wanted to know more about our religion. I wanted to know the basics of our life, so that whatever we are doing in this mortal world is something about, like, we should know what we are going to be answerable to Almighty after our death. तो आप इस तरह की चीजें भी बोल सकते हैं कि अगर आप रिलीजन को नहीं लेकर आए तो आप कहें कि यूजुअली लाइक फिक्शन क्या होता है, इमेजिनरी वाली बुक, नॉन फिक्शन रेंज हो गई. तो आपने बोल दिया कि आई लाइक फिक्शंस और आई रेड, और जिस बुक ने आपको इन्फ्लुएंस किया, और the book that changed your life was something which had a moral lesson. कोई भी चीज हो सकती है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है describe a child that you know is special to you. ठीक है. अब इसके पॉइंट्स के ऊपर ना मैंने हाथ रख दिया, बल्कि मैं उसको हटा देती हूँ. describe a child. ठीक है. क्वेश्चन है describe a child that you know is special for you. मतलब किसी एक बच्चे के बारे में बताना है जो आपके लिए स्पेशल है. तो आप क्या क्या बताएंगे इसके बारे में? I have 2 daughters.
नहीं, elder daughter. वेट क्वेश्चन समझे। उसने ये नहीं बोला कि आपको अपने बच्चे के बारे में उसने सवाल आपका ये है, डिस्क्राइब अ चाइल्ड, कोई भी बच्चा जिसको जो आपके लिए स्पेशल है। तो आपके लिए स्पेशल है, दैट मीन्स आपके लिए वो वैल्यू रखता है। तो अगर वो आपका अपना बच्चा है तो फिर आप बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट the child that I'm going to talk about is my own daughter, who has made a greater influence in my life, or who brought a lot of change in my life, or after whose birth my life changed. ठीक है, समझ आ रही है आपको? इसी तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है उसने लिखा है कि who the child is। पहला सवाल ही ये है कि बच्चा कौन है। ठीक है, अगर आप खुद ही माय डॉक्टर से स्टार्ट करेंगी तो पहले आपने फोकस अपना ये रखना है कि आपने पॉइंट तैयार करना है। ठीक है, पॉइंट पहले बताना है कि बच्चा कौन है, फिर बच्चा कैसा है, what the child is like as a person, मतलब वो किस तरह का बच्चा है, वो किस तरीके से, उसकी क्या हैबिट्स हैं, क्या नेचर है, और वो किस तरह का दिखता है, हाउ डज द चाइल्ड लुक लाइक। दैट मीन्स आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है कि शी इज टॉल, शी इज स्मार्ट, शी इज young, she is chubby, she's got a fair complexion, or she's got short hair, anything. Okay, and say why this child is important, वो आपके लिए क्यों है। तो you can say she is very important to you because she is your first child, or because she is the one who came into your life and your life changed, and who, because you are a mother, so she means the world to you। मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो ना। तो आपने ये याद रखना है बुशरा, जब भी सवाल आएगा तो आपने पहले सवाल को पढ़ने के बाद असेस करना है कीवर्ड्स क्या है। डिस्क्राइब अ चाइल्ड, ये नहीं बोला है योर चाइल्ड। ठीक है, वो ये बोला है कि डिस्क्राइब अ चाइल्ड, यानी कि किसी भी बच्चे को आपको डिस्क्राइब करना है। और उसका नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, स्पेशल फॉर यू। क्यों है वो आपका, जो वो बच्चा जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। तो आप जाहिर है बताएंगी कि कौन है वो बच्चा, आपका पहला पॉइंट ये हो जाएगा। फिर वो बच्चा कैसा है, किस तरीके से आप उसे जानते हैं, वो कैसा दिखता है, उसकी क्या आदत है। आप डिफरेंट चीजों के बारे में सोच सकते हो ना जब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। सो यू हैव टू थिंक अबाउट। तो अब आप बताएं, अगर यही सवालात होते तो आप बताते हु द चाइल्ड इज। अब आप उसके ऊपर बोले, अब पॉइंट्स आपको ऑलरेडी दिए हैं, हु द चाइल्ड इज, who is she or your daughter like a person। तो अब आप 1 मिनट ले लें, आधा मिनट ले लें और फिर बोलना शुरू करें। I'm talking about my daughter. I'm talking about my daughter, little daughter Nabila Nigar, and she is 4 years old, and she is special for me because she was birthed in premature baby. Because she was born as a premature baby. Born in premature baby. And Premature baby. she was born as a premature baby. बोले बोले। She was born as a premature baby, and she at the time of birth her weight is only 0.8 kg. Okay. And daughter says, hey, I don't know she is survive or not surviving. She is surviving, she will survive or she won't survive. Okay. She will survive. And so I pray for God to give me a God of daughter, gift of daughter. So please, you alive him or life or dead. Give her life. Give her life and
God is gift for me for her life, and she is mashallah, very intelligent and very cute, and she is like a parrot in my home. She's like a parrot in your house. Whole Okay. day- Bushra, Yes. hold on a second. Let me open the door. Okay. Just hold on a second. Okay. Okay. Sorry, Bushra. Sorry. Okay. Yes. No issue. Continue what you were saying. She is like a parrot in my home, and a whole day she is talking about and she is saying please Like Nadia, very talkative. Okay. stop there. बहुत, she was very talkative and very caring. She's Okay. very caring. I'm making a food in kitchen, so she was come and mama, She was can come I or she help came? you? Bushra, she was come or she came? She came. Yes. Very good. She came and she helped you out. And she talking about mama, can I help you? Okay. So how old is she now? She's very 4-year-old. She's 4-year-old. Okay. Very nice, mashallah. 4-year-old. Okay. And I am see my daughter, and I thanks to God, Allah Ta'ala ने उसको जो है वो give her life. English. Allah has given her life. Okay. Good. Allah has given her life, and I'm this reason I'm go to religion books. Okay. That's the reason that you opted for it. That's the reason. So you feel blessed that you have a daughter, although when she was Yeah. born, she was very lightweight and there were very less survival chances. Okay. Very, very good. Okay. Now the next question that we move on is describe a film that you daily like. Okay, and Bushra, don't read anything from the screen that the question is. Like, tell me, do you watch movies? Have you watched any movies or films? Do you like watching them? Not much more. Hmm. Not much more, but like watch it. Okay, so Not much more. not that you're habitual of watching movies every time, but whenever you watch, what kind of movies interest you? Like, what kind of a movie do you like? Do you like movies which are action, horror movies, or you like romantic? Actually, mostly I like dramas, not movies. Okay. Dramas only in Pakistani Okay, but dramas. the examiner is going to ask you this question that you have to describe a film that you really like. Now, in that case, you can't say that I only like, in dramas also, if you're watching on different channels, they're telefilms as well, right? So they're more of a drama sort, but they are movies, right? So what are you going to say? When you have to describe a film that you really like, what you should say is, what was it about? Like, what was the film about?
when you went to see it, if you went to watch it in a cinema or somewhere, or you when you saw it in your television, or when you brought the CD, or when you brought that, or when the cable operator turned it on. You can talk about anything. Okay, who you went with or who you watched with. Like if you went out to watch, maybe you went with your husband or your children or with your friends, or when you were watching it at home, did you watch it yourself or did you watch it with your kids? Likewise. Okay, and say why you really like that film. What was the reason, like, that movie you really like? Because the topic is that you have to tell about a film that you really liked. So basically, Right. what was the reason for liking that? So now if I'll give you a quick minute that you just recollect, just think over and let me know that which one was the movie that you liked very much and you're going to tell me about it. Okay, so just think over Okay. and then get on the topic. So should we start, Bushra? Yes. Bushra, I've mentioned in the group to Akshan that even if she's not online or there's no power, so the session is being recorded, so we'll send her the recording. Okay? Okay. Start. I'm talking about the film, and I like Indian film Bajrangi Bhaijaan, Okay. and a film cast of Salman Khan Mhm. and Kareena Kapoor. Okay. And I like this film because its film is a moral story. Okay. Like little girl in Go to India, Mm. and she is missing Go to for her India or mother. goes to India? Go to India or Goes to go India. Okay. She goes to India and missed for her mother. Okay. And Salman Khan is the hero of film, and he is uh, daughter back in Pakistan for meet her mother, Hmm. and too much facing her too much problems Hmm. this journey, Hmm. but she is help, but he is help He for is help or he little helps? daughter. He is help or He he helps? helps. He मुझे helps. इसी में थोड़ी मुश्किल होती है हेल्पिंग पर्सन में. कोई बात नहीं, लेकिन आपने याद रखना, मैंने आपको बताया था इस एम और आर के बाद अगर आपने वर्ब लगाना है तो आगे आईएनजी होगा. दैट मीन्स कंटिन्यूअस जी फॉर्म बन जाएगी. तो कंटिन्यूअस अगर फॉर्म में आपने जाएगी. वर्ब इस्तेमाल करना है तो फिर आप इस एम आर इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है, मैंने आपको बताई थी वो 3 सिचुएशंस जिनके अलावा आप वर्ब यूज करते हैं. यानी इज एम और आर के बाद आप अगर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे या एडजेक्टिव. Like if it's a noun, pronoun or an adjective, then only the use of is am are there. क्या मतलब? यानी कि किसी का नाम बता रहे हैं, किसी की जॉब बता रहे हैं, किसी की हॉबी बता रहे हैं, वह कहाँ आप is am are इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम हुमा, आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, या आई एम ग्रेजुएट. या अब अगर मैं बता रही हूँ कि मैं रिहाइश पजीर हूँ तो मैं कह सकती हूँ आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री. लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि आप रहते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? लिव. तो आई लिव, यू लिव, वी लिव, दे लिव, ही लिव्स, शी लिव्स. तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है? प्लूरल. ठीक है, तो इस तरीके से ये आप ना इसकी करेक्शन करें. ये अक्सर हो रहा है. एक ये और एक वो जो आपने वर्कआउट करना है वो है आर्टिकल्स का यूज और वन का. वन कुछ नहीं है, यूज कर तो फिर वन यूज नहीं करें. वन यूज करें क्योंकि आर्टिकल्स जो और एन है वो बताते ही एक चीज को है. ठीक है, तो जब वो एक चीज को बता रहे हैं तो आप फिर वन नहीं इस्तेमाल करेंगी, या अगर आप वन इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रियली मेक श्योर दैट यू आर डूइंग. एंड द अदर थिंग इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंटीन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस आईएनजी यूज कर रहे हैं तो आप क्या दो चीजें बता.
एक वो चीज जो अभी हो रही है, दैट मीन्स वो जारी है, विच इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब आप बात करेंगे या आप प्लान अहेड करेंगे। जैसे वेयर आर यू गोइंग आफ्टर द क्लास, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, कंटिन्यू ये फ्यूचर टेंस नहीं है, कंटिन्यूअस ही है, लेकिन आप क्या प्लान कर रही हो, क्या कर रही हो, तो इसमें करना है। हम यूजुअली जब उर्दू में बात कर रहे होते हैं तो हम कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जारी है, तो इसलिए हम जब इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी हम कंटिन्यूअस टेंस को ही यूज कर रहे Continuous होते हैं, tense use क्योंकि हम करते ट्रांसलेट कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखना है कि इसमें आपने इंडेफिनेट यूज करना है, यानी कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, आपने इज एम आर यूज करना है, आपने आईएनजी फॉर्म्स को लिमिटेड यूज करना है, ठीक है। तो अगर आप बता रही हैं कि आप आम तौर पे ये करती हैं, तो यू यूजुअली डू दिस, ठीक है। व्हाट इज योर रूटीन, तो आप राइट फ्रॉम द मॉर्निंग बताएं, आई यूजुअली गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और यू यूजुअली गेट अप एट 8। आप ये नहीं कहेंगी आई एम गेट अप, समझ आ रही है। फिर आप जी। यूजुअली कहेंगी आई मेक माई ब्रेकफास्ट और प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, तो तब भी आई एम प्रिपेयर नहीं कहेंगी, आई कहेंगी मैं तैयार करती हूँ, आई प्रिपेयर। तो आई एम प्रिपेयरिंग भी नहीं कहेंगी, क्योंकि आप इस वक्त तो तैयार नहीं कर रही हैं और ना ही करने वाली हैं, आप तो ये बता रही हैं जो आप यूजुअली करती हैं, ठीक है। करती तो हैं। दैट मीन्स आप फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स यूज करते हैं, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, ये सारे क्या है, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। इनके नाम नहीं भी याद होते कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ इतना करना है कि आपका जो मैसेज है वो करेक्ट इंग्लिश में कन्वे हो जाए। वैसे भी बेन रिक्वायरमेंट इज नॉट वेरी मच एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू आर गोइंग टू डू इट, सो यू डोंट हैव टू वरी, बट आपने कॉन्फिडेंट होना है और थोड़ा सा करेक्शन रखनी है अपनी लैंग्वेज। इन चीजों के ऊपर आप फोकस कर लेंगी तो आप करेक्ट आंसर्स दे रही हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सब आपका, आपको लगता है कि आई विल डन इट फॉर yes, 5.5? I'm pretty much sure you are going to get it, inshallah you will get it. So the thing is that you have to be more confident, you have to Yeah, I have too understand much problem for each section. never mind, always exams are a problem for everybody, every exam is a problem for everyone, and you know our life is also a problem because it's also Yes, an of exam. course. Okay, every other day we come across different situations, so you don't have to panic, you don't have to get disturbed, you know अभी तो आपको ये पता है ना कि आपने क्या करना है, आपकी कौन सी टास्क है, आपने उसके बाद क्या करना है, कितना टाइम देना है, क्या चीज करनी है, तो करें, खुश होके करें, इंजॉय करें। देखेंगे इन टॉपिक्स पे तो आप वैसे भी बातचीत करते ही है ना, तो इस Yes, of पर्टिकुलर course. के अंदर अगर आप बात करेंगी तो आप इंग्लिश में बात करिए, बस फर्क सिर्फ इतना हो गया कि जिसमें आप उर्दू में गॉसिप कर रही थी वो आप इंग्लिश में कर रही हैं। तो जहाँ करेक्शंस होते हैं कोई बात नहीं, आपकी अपनी लैंग्वेज थोड़ी है, बहुत सारी चीजें तो हमें उर्दू में भी नहीं आती हैं, तो क्या हुआ। I really thankful to you कि I attend your class, so I'm all satisfied and tension free. हाँ, बी टेंशन फ्री, दैट्स द की पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप जो टेंशन फ्री हो जाएंगी, स्ट्रेस फ्री होंगी, तो आप सारा कुछ खुद ब खुद ही सही बोल रही, कोई मसला नहीं। और जो मैं Very आपको encouraging. देती जा रही हूँ ना, और जो मैं आपको आपकी करेक्शंस में भी बताती जा रही हूँ कि ये चीज आपने नहीं करनी है, आप उसके ऊपर ना जब भी बोलने लगे ना, एक दफा अपने दिमाग में सोच लिया करेंगे मैं सुना ये, ठीक है। तो उस तरह ये होगा कि आप वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए मैं बार बार आपकी मिस्टेक्स दोहराती जब रहती हम पास्ट टेंस की बात करें तो हम ही के साथ फिर वो लगा देंगे ईजी, उसके साथ वर्ब के साथ ईजी लगा सेकंड फॉर्म देते हैं। लगा देंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल बात कर रही हैं कि मैंने देखी थी फिल्म, आई वॉच्ड द मूवी, ईडी लग जाता है, वर्स्ट हो जाता है, ईडी हो जाता है, ईडी पास्ट लग टेंस जाता आ है। जाता या हमारे पास एक्चुअली वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर वर्ब्स होते हैं और एक इररेगुलर वर्ब्स होते हैं। यानी कि जब हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाते हैं तो कुछ वर्ब्स के आगे हम डी ईडी आई ईडी लगा देते हैं। जैसे स्टडी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड, है। तो ये कहलाते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप है, टाइप की स्पेलिंग किस पे खत्म हो रही है, ई पे, तो आखिर में ठीक आप है। सेकंड फॉर्म लगाते हुए क्या लगा देंगे, डी, तो क्या बन जाएगा, टाइप्ड। आई टाइप्ड द लेटर, अगर आप कहते हैं आई टाइप द लेटर, दैट मीन्स आप हमेशा टाइप करती हैं, ठीक है, आई यूजुअली टाइप अ लेटर। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहती हैं मैं ईमेल करती हूँ, तो आई यूजुअली ईमेल बाय लेटर्स। लेकिन अगर आपने किया कि आपने ईमेल किया था, तो ईमेल्ड के लिए आप आखिर में क्या लगा रही हैं, ईडी, तो ये क्या हो गया, ईमेल्ड, पास्ट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से जब आप रेगुलर वर्ब्स के बजाय इररेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे ईट होती है, ईट का ईट जो वर्ड है, वर्ब है खाना, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, एट।
यानी कि Great. कंप्लीटली डिफरेंट स्पेलिंग है, इसको कहते हैं इररेगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे राइट है, राइट की स्पेलिंग में राइटेड नहीं या रोटेड नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं, रोट, WROTE, यानी कि कंप्लीटली डिफरेंट स्पेलिंग वर्ड। सो राइट इज अ रेगुलर वर्ब एंड इट्स सेकंड फॉर्म इज wrote and the third form is written. So that means जो irregular verbs होते हैं उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूजुअली डिफरेंट होती है, या फिर कभी ऐसा होता है कि सेम फॉर्म होती है, जैसे पुट है, पुट पुट पुट, तो ये पुटेड नहीं होता कोई लफ्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि ग्रामर में आपने ये बताना है कि ये रेगुलर या इरेगुलर, अनलेस आप एक स्टूडेंट होते हैं। लेकिन अगर आपको खुद से पता है, शक आ गया तो मतलब आपके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ ये फोकस करना है कि कहाँ पे आपने पास्ट टेंस यूज करनी है। इसी तरीके से जिस तरीके से आप इज एम आर का इस्तेमाल कर रही हैं, उसी तरीके से वॉज और वर का इस्तेमाल होता है। आई वॉज प्रिपेयर नहीं कहेंगी आप, क्या कहेंगी, आई प्रिपेयर्ड, आई वॉज प्रिपेयरिंग, ठीक है। या आप कह देंगे फर्स्ट फॉर्म आ जाती है जी, आप ये कह देंगी कि लाइक आई वाज राइटिंग द एसे दैट यू गेव मी, और आई रोट द एसे दैट यू गेव मी। आई रोट द एसे दैट यू गेव मी, दैट मींस मैंने लिखा था, एंड आई वाज राइटिंग, लिख रही थी। लेकिन आपको तो लिख रही थी नहीं बताना ना, आपने तो लिखा है ना, तो आप क्या कहेंगी, आई रोट। इसी तरीके से जब आप परफेक्ट, आई वॉज राइट नहीं आ सकता, आई वॉज राइट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि ये नाउन नहीं है, वर्ब है, वर्ब आईएनजी के बगैर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करती हैं तो वो कैसे होता है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं चुका चुकी, लेकिन आप किस तरह करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं उठने वाली हूँ, तो आई एम गोइंग टू, खड़े होने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, स्टैंड, आई एम गोइंग टू स्टैंड। अगर अब मैं खड़ी हो गई हूँ तो आप क्या यूज करेंगे, आई एम स्टैंडिंग। लेकिन अब मैं खड़ी हो चुकी हूँ तो आप क्या कहेंगे, when the job is completed then you use third form of the word verb, that is I have stood, standed नहीं, stand की थर्ड फॉर्म क्या है, stood, सेकंड फॉर्म stood, ओके। तो स्टैंडर्ड नहीं होगी, तो इसलिए आप ना वो जो ग्रामर की बुक में देख लीजिएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी है, उनको रट लीजिए ताकि आपकी फॉर्म्स और वर्ब गलत ना लगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आई यू वी दे के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, शी और इट के साथ हैज। बहुत सारे लोग कहते हैं ही हैव रिटन, ही हैव रिटन नहीं होता, ही हैज रिटन होता, ही शी और इट के साथ हैज लगता है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में यू कांट स्टॉप एनीबडी, यू नो, यू कांट जस्ट टेल हिम अनलेस एंड अनटिल वही क्लास स्टार्ट कर अटेंड कर रहा है, आपको समझ आ रही है, आपको इसके लिए फंक्शनल है इंग्लिश, आपके लिए इतना ही काफी है, तो दैट पर्सन वोंट टेल यू। But where you are being examined, there you have to be very careful about all your grammatical errors, you know, क्योंकि आपकी vocabulary, आपकी grammar, इन सब के ऊपर marks हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हम उर्दू इतनी गलत बोलते हैं, we don't speak correct उर्दू as well, ठीक है ना, लेकिन बात समझ आ रही है। इसी तरीके से आपने क्योंकि एक पर्टिकुलर बैंड स्कोर करना है तो आपकी बात भी समझ आनी चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट इंग्लिश बोल रही हो जिसके अंदर सब कुछ हो कि मैं बैंड 9 स्कोर करना चाह रही हूँ, ये 7 आ जाए, बहुत अच्छी बात है, बट आपका टारगेट एक हायर बैंड होना चाहिए। अगर लोअर बैंड अचीव हो गया तो वो आपका एक्सपेक्टेड ब्रेक था, क्योंकि आपको चाहिए इतना। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए ताकि आप ये अपने आप में ये रखिए कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी, तो then you'll definitely be not having any problems, right? ठीक है। तो अच्छा, आप स्पीकिंग पार्ट 3 के अंदर what happens, like अभी तक तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करी, right? समझ आ गया। अब पार्ट 2 के अंदर हमने देख लिया कि लॉन्ग टर्न कैसे लेगा। अब पार्ट 3 जो है उसमें what happens in this part is एग्जामिनर जो है वो कैंडिडेट को पार्ट 2 से रिलेटेड कोई भी जनरल या एब्स्ट्रैक्ट वे में ज्यादा डेप्थ में सवाल करता है। लाइक कितना इसकी ड्यूरेशन होगी, ये 4 से 5 मिनट ले सकता है, बिकॉज टोटल टाइम टेकन आई टोल्ड यू इज अबाउट 10 to 14 मिनट, 11 to 14 मिनट। सो व्हाट स्किल इज बीइंग असेस्ड, इसमें ये आपकी क्या महारत देख रहे होते हैं कि आप किस तरीके से अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करेंगे, किस तरीके से आप एनालाइज करती हैं, किस तरीके से आप सवाल को समझती हैं, किस तरीके से आप जो है इसको डिस्कस करती हैं और स्पेक्युलेट करती हैं कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उनके बारे में, क्या कैसे आप बता सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे नेक्स्ट
देखते हैं कि आइल्स का जो कैंडिडेट होता है उसकी जो असेसमेंट होती है इन 4 चीजों के ऊपर होती है। एक होती है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, कितने फ्लुएंट है, कितनी रवानी से आप बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको अगर सब्जेक्ट पे महारत होगी, फॉर एग्जांपल उर्दू में भी ये बात है, अगर वो आपको टॉपिक समझ आता होगा तो आप उसके बारे में ज्यादा बोल सकेंगे, लेकिन जिस बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगी, तो उस बारे में आप बोल ही नहीं पाएंगी। लेक्सिकल रिसोर्स मींस आपके पास की कितनी वोकैबुलरी है, कितनी आपके पास उसके अंदर अच्छे वर्ड्स हैं और अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं जो आपने इस्तेमाल करें। तो जिस तरह मैंने आपको राइटिंग के लिए डिफरेंट चीजें दी थी ना, इस तरह मैं आपको स्पीकिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट दूंगी, लेकिन आज नहीं, आज काफी लेट हो गया एंड आई ऑल्सो गॉट वेरी लेट, तो मैं आपको कल अफशा भी हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दूंगी, इसमें जब ना आपने बोलते वक्त क्या क्या इस्तेमाल करना है, जैसे लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, उसके अंदर आपने क्या क्या किस तरह के आप जुमले इस्तेमाल कर सकती हैं, वो मैं आपको दूंगी। तो वो आप अपनी रेगुलर पार्ट ऑफ स्पीच बना लें, लाइक जब भी आप बोल रही हो तो आप उन जुमलों का इस्तेमाल लेकर आइए, ताकि आपकी मतलब लगे कि यू हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, लाइक यू नो व्हाट आर द अदर वर्ड्स दैट यू कैन टॉक अबाउट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेंडली हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम एमिएबल और आई एम एमिकेबल और आई एम लाइक इस तरह, रिच है तो फ्लुएंट का वर्ड यूज कर सकती हैं आप। तो डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं, जो बता सकते हैं कि आपको ग्रिप है लैंग्वेज के ऊपर। डिफरेंट वर्ड्स। जी, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, यही जो मैं आपकी करेक्शंस करती जा रही हूँ ग्रामर में, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको आपके नंबर कटते हैं कि अगर आपने गलत किया। और प्रोनाउंसिएशन क्या है, और प्रोनाउंसिएशन के अंदर हमारे पास ब्रिटिश और अमेरिकन आ जाता है, इस तरह ऑस्ट्रेलियन तो वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपने बिल्कुल ही बन के बोलना है, आप जैसे अपनी लैंग्वेज में बोल रही हैं हम वैसे ही बोलेंगे, बिकॉज यू आर नॉट ए नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग, you try your utmost that the word is pronounced correctly, but it's not that you have to adopt their accent अलग है, pronunciation अलग, आपने उनका लहजा नहीं लेना बल्कि वर्ड को सही से प्रोनाउंस कर। समझ आ रही है बुशरा? इज इट क्लियर? जी। Okay, let's move on to the next thing that is there. असेसमेंट क्राइटेरिया, यही जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है कि इसमें बताते हैं कि आप किस तरीके से लाइक फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस के अंदर आप ये बता रहे होते हैं कि कैंडिडेट में कितनी सलाहियत है कि वो नॉर्मल लेवल्स में कितनी रवानी से बोल सकता है, इसका स्पीच रेट क्या है, कितनी कोशिश कर रहा है, वो कितने आइडियाज को लिंक कर सकता है, एक साथ वो क्लियरली लोगों को बता सकता है। दिस इज व्हाट इट मींस। ओके, बेसिकली दिस रेफर्स टू द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू टॉक विद नॉर्मल लेवल्स ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, स्पीच रेट, एफर्ट, सारी चीजें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, आपका सेकंड पॉइंट था लेक्सिकल रिसोर्स, यही मैंने आपको बता दिया, रेंज ऑफ वोकैबुलरी, सो वी डोंट नीड, आई थिंक तो आपको समझ आ गया ना इसको, फिर आगे फर्दर हम चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। स्पीकिंग में क्या डूज होते हैं और क्या डोंट्स होते हैं, आपने यू हैव टू टॉक टू द एग्जामिनर, एस्टैब्लिश एन आई कांटेक्ट, ये नहीं कि ऊपर देख रही है इधर उधर देख रही है, सबसे बेस्ट होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं आप अपना आई कांटेक्ट स्टैब्लिश करें, इस तरह वो मजबूर हो जाता है आपकी बात सुनने पर भी, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपको कभी किसी से कोई चीज पूछनी है या किसी से मतलब अपने बारे में या किसी चीज के बारे में राय लेनी है, तो आप उसको फेस टू फेस क्वेश्चन करें। क्यों? क्योंकि वो आपके मुंह पे मुकरेगा या कुछ भी करेगा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको समझ आ जाएगा कि वो आपको क्या कन्वे करना है। और अगर आप किसी से बात करते हुए उसे देख रहे होते हैं तो आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि when you are having a Zoom session, please turn your videos on और अपना फेस रखें, ताकि पता चलता है कि दूसरा कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसे समझ आ रही है नहीं आ रही है, उसकी चेहरे के ऊपर बॉडी लैंग्वेज। body language is very important. So listen carefully to the questions that you are asked and the answers are relevant. Very important point. It's not that आपको पूछा कुछ और जा रहा है और आप जवाब कोई और दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना है और आपको सवाल को समझ के उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। Answer the questions you are asked with some detail so that the answers are long enough. यानी कि आपको इतना, क्योंकि आपके पास एक टाइम है ना, आपको इतनी कमांड होनी चाहिए कि आप उसको खींच के उतना ले जाएं ताकि आप उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर उतनी गुफ्तगू कर सकें। लाइक अगर आप लाइक if you are having 2 to 3 minutes, then you should have ample knowledge about the topic कि आप 2 से 3 मिनट तक उसको खींच सकें। अगर आपको नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली आप सिर्फ सवाल के जवाब दे के चुप हो जाएंगी, कोई आंसर नहीं आएगा। Practice speaking for 2 minutes for the long turn in part 2,
ठीक है, वही जो आपको कहा था कि क्यू कार्ड मिला है, टास्क मिली है, पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं, उसके बारे में बोला है, तो आप जब सेकंड में बोलेंगे तो इतना होना चाहिए मवाद आपके पास कि आप इतने ज्यादा बोल सके। ठीक है, अगर बुशरा फास्ट जा रही हूँ तो आप बता देना। ठीक है, समझ आ रही है ना? यू अंडरस्टैंडिंग? जी जी। Use the preparation time in part 2 to think about what is written on the card. Okay, use the instruction and prompts on the card in part 2 to help you organize your long term. जैसे आपको कहा था मेन पॉइंट्स आपने ऐसे में भी इसीलिए बनाने हैं ताकि आप उसको फर्दर पैराग्राफ में उसी का जवाब देते हुए उसको एलैबोरेट कर सकें, उसे बढ़ा सकें, उसके बारे में ज्यादा बोल सकें। Practice ways of delaying answers to give yourself time to think. जैसे अगर फॉर एग्जांपल पार्ट 3 में वो आपसे कोई सवाल करते हैं, अब लेट्स सपोज आपको आंसर देना है और आपको कोई आ नहीं रही है, तो आपने उसको घुमाना है थोड़ा सा। ठीक है, मतलब बात करते करते, ताकि आपको इतना टाइम मिले कि आप बोलते बोलते सोच सकें कि आपने उसको क्या देना है। ठीक है, जैसे अक्सर होता है ना, जैसे किसी ने आपसे कोई सवाल किया, अब आपको फौरन से नहीं जवाब पता, तो आप ये तो नहीं कहेंगे आई डोंट नो, अब आपको बताना ही है क्योंकि वो सी टॉपिक रिलेटेड है और आपको थोड़ा सा अपने लिए वक्त चाहिए, तो आप बात को घुमाएं। ओके, आई वुड लाइक, यस आई वाज थिंकिंग, यूं यूं करते करते अला वला आप सोच भी लें। ठीक है, एक्सप्लेन योर ओपिनियंस एंड गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट देम। ठीक है, तो जाहिर है हमेशा जब भी आप मिसाल देते हैं तब बात ज्यादा क्लियर समझ आती है, वरना नहीं आती। और स्पीकिंग डोंट्स क्या होते हैं, क्या क्या आपने नहीं करना। डोंट वरी इफ यू कांट ट्राई एंड फाइंड आउट द वर्ड। लाइक अगर आपने कोई वर्ड मतलब आपको बोलना है और आपको नहीं आ रहा है, छोड़ दें, कोई बात नहीं, गलत बोल दिया, उसके बारे में नहीं सोचना। अब आगे क्या बोलना है उसके बारे में सोचना, जो हो गया सो हो गया, डन कांट बी अनडन। डोंट राइट ऑन द टास्क कार्ड, जो आपको टास्क कार्ड मिला है उसके ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है, दे विल गिव यू अ पेपर, इफ दे गिव यू देन यू राइट इट। डोंट टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स ऑन द कार्ड। पार्ट टू में जो दिया हुआ है उससे रिलेटेड ही बात करनी है, अपने पास से अला बला शला नहीं बोलना। Don't worry if you realize that you have made a mistake. It's okay to correct yourself. If you can't correct yourself, forget it and carry on. अगर आप अपने आप को नहीं सही कर पा रहे उसमें कोई बात नहीं, जो आ रहा है मुंह में बोल दो। Don't ask the examiner if you say what is correct. Examiner से नहीं पूछना कि did I say right or was my answer correct. ठीक है, उससे कुछ नहीं बोलना, जो आ गया बस आप हैं, आप समझे आप हैं ही सही, बिल्कुल जो भी बोल रही है वो सही बोल रही है। एग्जामिनर को लगे ना लगे आपको सही लगता है। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। फिर नेक्स्ट आ गया आपके, यही एग्जांपल दी हुई है डिफरेंट, हम इसको छोड़ते हैं। इसके अंदर ये काफी चीजें हैं जो मैं आपको कॉपी कर दूंगी। आई थिंक तो ये एक दो स्लाइड्स आपने ऑलरेडी पहले भी देखी हुई होंगी। हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस। आप वो अपनी स्टूडेंट्स बुक निकालना, स्टूडेंट बुक के अंदर आपके पास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, स्पीकिंग पार्ट पर चले जाएगा। स्पीकिंग पार्ट का आप मुझे पेज नंबर बताइएगा कौन सा आप देख रही हैं, या टेस्ट कौन सा देख रही हैं जो स्पीकिंग का है, जो आप प्रिपेयर करी हैं वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, सो दैट अक्षा को भी पता चल जाए एंड शी आल्सो गोज थ्रू इट। ठीक है, फिर हम लोग कल का जो सेशन करेंगे उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी वजह से लेट टाइम निकाला। आई एम सो सॉरी। No, it's so nice of you. तो ये कि अभी आपके पास भी 12 बज रहे होंगे और मेरे पास 11 बज चुके हैं, तो लेट्स विल एंड अप दिस सेशन फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल फिर हम कनेक्ट होते हैं। कल का भी टाइम, आजकल टाइमिंग्स जरा इस तरह हैपेजर्ड जा रहे हैं। कल मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है ड्यूरिंग द डे, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इवनिंग में ही सेशन रखूंगी 7 के बाद जब वो वापस आ जाए, वरना फिर अब्दुल्ला को जरा देखना जरा इशू हो जाता है। ठीक है, तो विल कीप इट इन द इवनिंग टुमारो। अक्षा को भी मैं बता दूंगी और आपको भी बता दूंगी, मोस्ट प्रॉब्ली 7 o'clock और 8 o'clock का टाइम रख लेंगे कल का, या अगर आप लोगों को लेट यही वाला सूट कर जाए, वट एवर सूट्स यू, तो हम इस हिसाब से अपने टाइमिंग्स रखेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग। ज्यादा से ज्यादा बुशरा कोशिश करें, इवन विथ योर चिल्ड्रन, विथ योर हस्बैंड, एवरीबडी जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। द मोर यू स्पीक इन इंग्लिश द बेटर यू गोइंग टू गेट इट। और फिर बोलते बोलते जो चीज समझ नहीं आ रही हो या बोलना चाह रही हो उसको लिख लें एक जगह उर्दू में, उर्दू का जो चीज ट्रांसलेशन में या नहीं आ रही आप लिख के रख लें, ताकि फिर जब आप नेक्स्ट टाइम बोलें तो आपको पता हो कि ये क्या चीज है। या आप मुझे सवाल कर लें, मैं आई वांट टू से दिस थिंग बट आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, तो आई विल गिव यू दैट आंसर, लेकिन फिर आप उसको हिट्स कर लें कि यू हैव टू यू नो आंसर इट दैट। ठीक है, और कुछ पूछना मिश्रा? वांट टू आस्क एनीथिंग? No, thanks. Thank you so much. Okay dear, take care, have a nice time, sleep well. Thank you so much. Allah Hafiz. Love it. Allah Hafiz.